Hello everyone, this is Priya Goyat, Assistant Professor, Department of Botany, Dayanand College, Hisar. Today we are going to discuss about biological nitrogen fixation. नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अराउंड 78% के अराउंड है. Despite this fact, nitrogen is a very critical element for plants. The reason behind this is plants cannot absorb molecular nitrogen. uh, Plants can only absorb nitrogen in the form of ammonium और नाइट्रेट, और इस मोलिकुलर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना इनटू अमोनियम और नाइट्रेट ताकि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें, इसी प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन दो टाइप का हो सकता है, ए बायोलॉजिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है. व्हेन लिविंग organisms are involved in fixing of nitrogen, then it is called as biological nitrogen fixation, and only prokaryotes and organisms can fix nitrogen. In the next slide we are going to discuss about types of nitrogen fixation. As we discussed in the previous slide, nitrogen fixation can be a biological type और बायोलॉजिकल टाइप. ए बायोलॉजिकल टाइप में भी दो टाइप से नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एंड सेकंड वन इज नेचुरल. इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में डायरेक्टली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं जैसे कि यूरिया. इसके अलावा सेकंड टाइप इज नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन. नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स ड्यूरिंग द लाइटनिंग प्रोसेस. जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लाइटनिंग की एनर्जी की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं in the nitrous oxide or nitrate oxide, and that nitrogen oxides in the form of in the presence of water changes into nitric acid, and that nitric acid fall on the earth in the form of acid rain, and this nitric acid then get absorbed by the soil. Next type of nitrogen fixation is biological nitrogen fixation. It can be further divided into non-symbiotic nitrogen fixation and symbiotic nitrogen fixation. There are some free living organisms like azobacter which fix nitrogen freely in the soil without being associated with any other organism. This type of nitrogen fixation is called as non-symbiotic biological nitrogen fixation. इसके अलावा symbiotic नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है. ये इसको भी हम फिर आगे दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. एक symbiotic nitrogen fixation in legume plants and second is symbiotic nitrogen fixation in non-legume plant. नेक्स्ट की स्लाइड में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के. सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेग्यूम प्लांट्स के अंदर. देर आर सम बैक्टीरिया लाइक एजोराइजोबियम, ब्रेडिराइजोबियम, फोटोराइजोबियम, राइजोबियम, साइनोराइजोबियम etc. and these all bacteria collectively called as rhizobia. These bacteria live in close relationship with legume plants. They fix nitrogen for the legume plants and in return get carbohydrates from the legume plant. This symbiotic relationship is beneficial for both the bacteria and the plant. Next is symbiotic relationship with known legume plants. इसमें कुछ बैक्टीरिया लाइक फ्रैंकिया, दिस बैक्टीरिया
make symbiotic relationship with known legume plants like Cajunaria. इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ लाइक एनाबीना इज ए साइनोबैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन रिलेशनशिप में रहता है विद अजोला. अजोला इज ए वाटर फर्न. इसके अलावा नोस्टोक है, जैसे नोस्टोक कई प्लांट्स के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, लाइक रूट ऑफ साइकस के अंदर ये मिल सकता है. शुगर केन के साथ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है दैट इज एसिटोबैक्टर. नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के. इसमें सबसे पहले एग्जांपल है लाइक साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया के कुछ members like Anabina, Nostoc, these can freely live in the soil and fix nitrogen. Other bacteria like Azospirillum, Azobacter are the aerobic bacteria that freely fix nitrogen. Some are facultative bacteria like Bacillus. Some are anaerobic bacteria. एनारोबिक बैक्टीरिया को भी हम आगे दो टाइप्स के अंदर बांट सकते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल्स है लाइक क्लोस्टेरिडियम. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल है क्रोमेटियम, रोडोस्पाइरलम. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेप्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. जैसा कि फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने एक्सप्लेन किया था, plants are not able to absorb atmospheric nitrogen in the form of N2. They can only absorb nitrogen in the form of ammonium or nitrate. और नाइट्रोजन, मोलिकुलर नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना इनटू अमोनियम और नाइट्रेट, इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. कुछ बैक्टीरिया इस प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं. दो टाइप के बैक्टीरिया इसमें मैंने दिखा रखे हैं, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. अमोनिफाइंग बैक्टीरिया लाइक बैसिलस, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया के अंदर. फर्स्ट दे कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू डाइअमाइड दैट इज N2H2. देन दे कन्वर्ट डाइअमाइड इनटू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का फॉर्मूला है N2H4 एंड अल्टीमेटली दे कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू अमोनिया. अमोनिया गैस की फॉर्म में होती है और अमोनिया इज ए वेरी टॉक्सिक गैस इवन इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स. तो जैसे ही अमोनिया बनती है वो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो सकती है, इसलिए अमोनिया के बनते ही वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू अमोनियम आयन. H positive ion is taken from the soil. Ammonia is get converted into ammonium. Then this ammonium can be taken by the plant as such, or there may be some nitrifying bacteria present in the soil that can convert ammonium into nitrite and nitrate. First ammonium get converted into nitrite and then this nitrite is converted into nitrate. जो बैक्टीरिया अमोनियम को नाइट्राइट के अंदर चेंज करता है दैट इज नाइट्रोसोमोनास, एंड जो नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर चेंज करता है दैट इज नाइट्रोबैक्टर. then plant can absorb this fixed nitrogen in the form of ammonium or nitrate. इसके अलावा सोइल के अंदर कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो कि इस पूरी प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं और फिक्स्ड नाइट्रोजन को फिर से मोलिकुलर नाइट्रोजन के अंदर चेंज कर देते हैं. इसका एग्जांपल है लाइक सूडोमोनास. In next slide we are going to discuss about nitrogenase enzyme and the conditions for the proper functioning of the nitrogenase enzyme. Nitrogenase enzyme
is found in the prokaryotic organisms that fix nitrogen. But this enzyme can only work in the anaerobic conditions. ऑक्सीजन क्या करती है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीजन इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देती है, इसलिए जो हमेशा जो नाइट्रोजन फिक्स होगी वो एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर फिक्स होगी. लेकिन हमने पीछे की स्लाइड्स में ये देखा था देयर आर सम एरोबिक बैक्टीरिया ऑल्सो दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन. तो हाउ दे अडेप्ट, वो कैसे फिर काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट की स्लाइड में देखेंगे. इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट लैग हीमोग्लोबिन. हम जब रूट नोड्यूल्स को ट्रांसवर्सली कट करते हैं, वी विल फाइंड दैट रूट नोड्यूल्स आर पिंकिश इनसाइड. और ये जो पिंक कलर होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड एज लैग हीमोग्लोबिन. लैग इन दिस वर्ड लैग हीमोग्लोबिन डिनोट करता है लेग्यूम को. हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन दैट बाइंड्स विद ऑक्सीजन. इसमें जो हीम पोर्शन है लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन का, वो बनाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, और जो ग्लोबिन पोर्शन है उसको होस्ट प्लांट खुद बनाता है. ये जो लैग हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ये ह्यूमन हीमोग्लोबिन से रिजेंबल करता है, लेकिन इसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है दैट इज मच ग्रेटर देन आवर हीमोग्लोबिन प्रोटीन. ये प्रेजेंट कहाँ होता है, जो बैक्टीरियल सेल्स होती है नोड्यूल के अंदर, उसके सराउंडिंग में ये प्रेजेंट होता है. और जितनी भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उन सब के लिए इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से ये सारी ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है. और नाइट्रोजनेज के पास ऑक्सीजन फिर नहीं पहुंच पाती और नाइट्रोजन प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज heterocyst. Heterocysts are some special cells found in the cyanobacteria. heterocyst थिक वॉल सेल्स होती हैं जो अपने आसपास की सेल्स से थोड़ी एनलार्ज हो जाती हैं, उनकी वॉल थिक हो जाती है. और सिर्फ यही सेल्स होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं. साइनोबैक्टीरिया में मोस्टली जिन साइनोबैक्टीरिया के अंदर हेट्रोसिस्ट बनते हैं, सिर्फ वही साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं, क्योंकि इन हेट्रोसिस्ट के अंदर स्पेशल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती और नाइट्रोजनेज एंजाइम आराम से फंक्शन कर सकता है. फोटोसिंथेसिस के अंदर दो पिगमेंट्स दो फोटोसिस्टम काम करते हैं. एक होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड होता है फोटोसिस्टम सेकंड. फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर ही हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से ही इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होता है. इन हेट्रोसिस्ट के अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट ऑपरेटिव होता है, फोटोसिस्टम सेकंड इनके अंदर एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से जब इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता. तो ये कुछ एडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से हेट्रोसिस्ट के अंदर ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ताकि नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन कर सके और नाइट्रोजन फिक्स की जा सके. इसके अलावा कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जिनके अंदर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है एनाबीना. तो ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ये सिर्फ एनारोबिक कंडीशंस के अंदर ही नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, और ये एनारोबिक कंडीशन उनको मिलती हैं फ्लडेड वाटर होने की वजह से. एनाबीना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है विद ए वाटर फर्न जिसका नाम है अजोला. फोटो में आप देख सकते हैं राइस फील्ड के अंदर वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर फ्लडेड कंडीशन है. यहाँ पे अजोला और एनाबीना की
की एसोसिएशन मिलती है, और फ्लडेड कंडीशन होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, और इस एनारोबिक कंडीशन के अंदर एनाबीना नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है। जनरली ये जो एसोसिएशन है एक दिन के अंदर 0.5 kg ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है पर हेक्टेयर। जब ड्राई कंडीशंस हो जाएंगी तो ये ऑर्गेनिजम्स डाई कर जाएंगे, और जितने भी नाइट्रोजन इन्होंने फिक्स कर रखी होगी वो सारी की सारी नाइट्रोजन रिलीज कर देंगे सॉइल के अंदर। इसलिए इनको बायो फर्टिलाइजर्स का भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज नोड्यूल organogenesis. Nodule organogenesis is the process of formation of nodule. इसके स्टेप्स दिखाए गए हैं। जो राइजोबिया होता है वो लेग्यूम प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, लेकिन ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इट इज़ नॉट ओब्लिगेटरी। राइजोबियम फ्रीली भी सोइल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जब राइजोबियम फ्रीली सोइल के अंदर प्रेजेंट है तब वो एरोबिक कंडीशंस के अंदर होता है और वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता। लेकिन जब राइजोबियम लेग्यूम्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर आ जाएगा तब वो नाइट्रोजन सिर्फ उसी टाइम पे वो नाइट्रोजन फिक्स करता है और उस एनारोबिक कंडीशंस के अंदर रहता है। प्लांट की जो रूट हेयर्स होती हैं वो कुछ अट्रैक्टेंट्स सिक्रीट करती हैं, जैसे कि आइसोफ्लेविनोइड्स, जिसकी वजह से सोयल में जो प्रेजेंट राइजोबिया उनकी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही राइजोबिया रूट हेयर के पास आएंगे वो वहाँ पे अपने आप को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर देंगे, और इनकी कॉलोनाइजेशन के बाद जो रूट हेयर है वो अपने आप को कर्ल करना स्टार्ट करेगा अराउंड देयर कॉलोनी। अब क्या होगा, जो अब इस इसके रिस्पॉन्स में प्लांट की होस्ट सेल्स एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाती हैं। वो जो इन्फेक्शन थ्रेड है वो कैसे बनता है, जो गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल्स रिलीज होती हैं उनके फ्यूजन से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनती है जिसको इन्फेक्शन थ्रेड बोला जाता है। इस डायग्राम में सी पार्ट के अंदर ये दिखाया गया है, इन्फेक्शन थ्रेड डेवलप हो रहा है गोल्जी बॉडी से, और जैसे ही फिर ये इन्फेक्शन थ्रेड बनता है जो आसपास जो राइजोबिया थे वो जो सेल वॉल है रूट हेयर की उससे अटैच करते हैं, सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं, और एपोप्लास्ट के अंदर फिर एंट्री करते हैं, एपोप्लास्ट से फिर मिडल लैमिला के अंदर एंट्री करते हैं और खुद का अपना एक इन्फेक्शन थ्रेड अलग से बनाते हैं। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो इन्फेक्शन थ्रेड मेड बाय राइजोबिया एंड इन्फेक्शन थ्रेड मेड बाय गोल्जी बॉडी और द होस्ट सेल इटसेल्फ गेट फ्यूज्ड, वो दोनों के दोनों फ्यूज कर जाते हैं। उसके बाद मूवमेंट ऑफ राइजोबिया स्टार्ट होती है इनटू द इन्फेक्शन थ्रेड, वो अंदर की साइड मूव करते रहते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और उसके बाद जो ये इन्फेक्शन थ्रेड है डीपर साइट्स के अंदर भी जाना स्टार्ट कर देता है, डीप कोर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकिल तक ये पहुंच जाता है। उसके बाद ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है इसकी ब्रांचिंग भी हो सकती है, ब्रांचिंग हेल्प करेगी नई सेल्स को अफेक्ट करने में। अब इस स्टेज के ऊपर जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और जो बैक्टीरिया होगा वो साइटोकाइनिन बनाएगा, और इन दोनों एंजाइम्स की प्रेजेंस में सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन के इफेक्ट की वजह से सेल डिवीजन फास्ट हो जाएगी और एक आउटग्रोथ बन जाएगी। उस आउटग्रोथ वही आउटग्रोथ एक गांठ की तरह दिखाई देगी और उसी को हम नोड्यूल बोलते हैं। और ये जो नोड्यूल होगा वो इन क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेगा टू द वस्कुलर सप्लाई ऑफ द प्लांट, ताकि वो वहाँ से मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स लेता रहे। In this slide we will discuss about genetic basis of the nodule formation.
नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी जीन्स होती हैं? प्लांट के अंदर नोड्यूलिन जीन्स होती हैं, जिसको हम NO नोड जीन्स से दिखाते हैं। और राइजोबियम के अंदर नोड्यूलेशन जीन्स होती हैं, इनको भी हम नोड जीन्स ही बोलेंगे। जो राइजोबियम की नोड जीन्स होती हैं वो कुछ जीन्स जनरल होती हैं जो हर प्लांट के ऊपर एप्लीकेबल होंगी, जबकि कुछ एक जो नोड जीन्स होती हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होती हैं। जैसे जनरल जो नोड जीन्स हैं उनके एग्जांपल्स नोड ए, नोड बी, नोड सी। और कुछ प्लांट स्पेसिफिक नोड जीन्स है लाइक नोड पी, नोड क्यू, नोड एच। एक नोड डी जीन होती है राइजोबियम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन शो करती है और लगातार प्रोटीन बनाती रहती है। जब ये कांटेक्ट में आती है प्लांट के रूट हेयर के, तो ये जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रोटीन फिर नेक्स्ट जो डाउनस्ट्रीम अदर नोड जीन्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगा। वो डाउनस्ट्रीम नोड जीन्स फिर नोड फैक्टर्स बनाएंगी। नोड फैक्टर्स गेट रिलीज्ड इनटू द सोइल और उन नोड फैक्टर्स को प्लांट के अंदर लैक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं, वो लैक्टिन्स उन नोड फैक्टर्स को रिसीव करेंगे। लैक्टिन एक्टिवेशन होगी और लैक्टिन की एक्टिवेशन के बाद अटैचमेंट ऑफ राइजोबिया होगी टू द सेल वॉल ऑफ ए रूट हेयर। नेक्स्ट इज नाइट्रोजनेज एंजाइम, हाउ इट फंक्शंस। नाइट्रोजनेज एंजाइम के अंदर दो मेटेलिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक आयरन होता है और एक दूसरा होता है मोलिबडेनियम आयरन प्रोटीन। आयरन प्रोटीन गेट रिड्यूस्ड बाय फेरोडोक्सिन और इस प्रोसेस में एटीपी यूटिलाइज होती है। 16 एटीपी आर कन्वर्टेड इनटू 16 एडीपी एंड फॉस्फेट। जब आयरन प्रोटीन रिड्यूस हो जाएगा वो फर्दर रिड्यूस करेगा आयरन मोलिबडेनियम प्रोटीन को और रिड्यूस्ड आयरन मोलिबडेनियम प्रोटीन विल रिड्यूस द मोलिकुलर नाइट्रोजन। इसमें 8 हाइड्रोजन आयंस की भी जरूरत पड़ेगी। दिस मोलिकुलर नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू 2 molecules of ammonia and H2 gas is released as a byproduct. This is the scheme for electron flow in the nitrogen fixation. So this was all about the biological nitrogen fixation. Thank you for watching this video. Have a good day. Thank you so much.